नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर लोकसभा क्षेत्र के लिए आज 3 नामांकन दाखिल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में खुशीनगर से बीदर शहर तक 133वीं फीट का नीला ध्वज पहुंचा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मंगलूर में विशाल रोड शो किया। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी में वोक्कलिगाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में प्रमुख लिंगायत नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। डिंगलेश्वर संघ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए बीदर लोकसभा क्षेत्र से आज नामांकन के दूसरे दिन कुल 3 नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा, कर्नाटक राष्ट्र समिति के उम्मीदवार रमेश जयराम और निर्दलीय रियाज अहमद ने अपना नामांकन दाखिल की है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में खुशीनगर से बीदर शहर के अम्बेडकर चौक तक 133 फीट नीला ध्वज लेकर पहुंचे। इस मौके पर विभिन्न दलित संगठनों ने स्वागत किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 133ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲನಗರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಕುಶಿನಗರದಿಂದ ಏನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ। ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ। ಆದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವಾಗ್ಮಯಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ। ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್। ಕುಶಿನಗರದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆದಂಥ ನೀಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದರ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತವೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಧ್ವಜ ಯಾಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕುಶಿನಗರದ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಭೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಮುಖಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜಯಂತಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ। ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಜಯಂತಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ। ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಡಾಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ बीदर। बीदर के शिवनगर फुटपाथ पर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी ने विश्व कला दिवस के हिस्से के रूप में मतदान जागरूकता पर एक कला प्रदर्शनी और एक कला शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर गौतम अरली, जिला कजाप अध्यक्ष सुरेश चटशेट्टी, सोम शेट्टी, वरिष्ठ कलाकार शांतवा, योगेश महाविद्यालय के उपाध्यक्ष विष्णुकांत उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तटीय शहर में एक विशाल रोड शो किया और रास्ते में उत्साही बड़ी भीड़ का हाथ हिलाया। विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहन पर खड़े होकर मोदी ने सड़कों के किनारे और आसपास की इमारतों पर इकट्ठा हुए लोगों का अभिवादन किया, जिनमें से कई लोगों को जोरदार जयकारों और ढोल की आवाज के बीच मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे लगाते देखा गया। कई स्थानों पर उत्सव का माहौल दिखाई दिया। जैसे ही उनका काफिला भाजपा के गढ़ दक्षिण कन्नड़ जिले में नारायण गुरु सर्कल से नवभारत सर्कल तक धीरे धीरे गुजरा, हजारों लोगों ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। कुछ स्थानों पर मोदी ने भी वाहन के बोनट पर जमा फूलों की पंखुड़ियों की भीड़ पर पलटवार करके जवाब दिया। भगवा टोपी पहने और कमल का निशाना लिए हुए प्रधानमंत्री के साथ वाहन में दक्षिण कन्नड़ भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार कैप्टन दिनेश चौटा और पड़ोसी उडुपी चिकमंगलुरु सीट से पार्टी के उम्मीदवार कोटा श्रीनिवास पुजारी भी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुक्कोलिगांव से कांग्रेस के लिए काम करने का आह्वान किया और आरोप लगाया कि भाजपा में इस समुदाय के लिए कोई जगह नहीं है। शिवकुमार, जो मैसूरू कोडगु लोकसभा क्षेत्र में मुक्कोलिगांव वोटों को आकर्षित करने की होड़ में है, उन्होंने रविवार रात मैसूर के एक निजी होटल में मुक्कोलिगांव सदस्यों की बैठक में भाग लिया। शिवकुमार ने कहा, भाजपा में मुक्कोलिगांव के लिए कोई जगह नहीं है, जेडीएस के लिए भविष्य में जितना संभव नहीं है, इसलिए आपको मुझे ताकत देनी चाहिए। मुझे पता है कि मैसूर में मुक्कोलिगांव समुदाय के लिए कोई सुरक्षा नहीं है और नेतृत्व के मुद्दे का भी सवाल है। अब कांग्रेस नेता के वेंकटेश के हरीश गौड़ा ने कदम उठाया है। मैं मैसूर का दामाद हूं। उन्होंने कहा, मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर लक्ष्मण हार गए तो इसका असर मुझ पर और मुक्कोलिगांव नेताओं पर भी पड़ेगा। राज्य की उत्तरी सीमा में सबसे प्रभावशाली लिंगायत मठाधीशों में से एक दिंगलेश्वर संत 7 मई को होने वाले आगामी चुनाव में धारवाड़ हुगली लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता प्रहलाद जोशी को चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं। धारवाड़ जिले के शिरहट्टी में फकीरेश्वर मठ के प्रमुख, उनके समुदाय के 200 से अधिक संतों ने अपने समुदाय के भीतर पर्याप्त वोटिंग ब्लॉक सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए चुनाव जीतने का विश्वास व्यक्त किया। एचटी के साथ एक साक्षात्कार में दिंगलेश्वर दृष्टा ने केंद्रीय मंत्री को लेने के अपने फैसले पर अंतर्दृष्टि साझा की। संत ने कहा, जोशी सहित अन्य लोगों के साथ उनकी जाति, पंथ या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। मेरा मुकाबला उनके या उनके समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस दोषपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ है जो उन्होंने पिछले 2 दशकों से जारी रखा है। सोशल मीडिया पर मेरे भक्तों और ग्राहकों की एक बड़ी संख्या है जो मुझे एक गैर धार्मिक प्रगतिशील स्वामी के रूप में पहचानते हैं। मेरा ध्यान लोगों की सेवा करने पर है और मेरी उम्मीदवारी का लक्ष्य उन पर हुए अन्याय को ठीक करना है। फिर से रोकते ही समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। विजयपुरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राजू अलगुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मंत्री एमबी पाटिल सहित अन्य उपस्थित थे। इससे पहले उम्मीदवार के कार्यालय का उद्घाटन मंत्री एमबी पाटिल ने किया और फिर सिद्धेश्वर मंदिर से एक विशाल रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किए। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया है कि पूर्व मंत्री वी सोमन्ना ने बरोड़ा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने पर 50 करोड़ रुपए से 60 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने सोमन्ना को तुमकुर से इसलिए मैदान में उतारा है क्योंकि उनके पास पैसा है। वह भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान लूटे गए पैसे को यहां खर्च करने आए हैं। पिछली बार जब सोमन्ना ने बरोड़ा में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था तो उन्होंने लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए थे। पिछले साल भी उन्होंने चामराजनगर में इतनी ही रकम खर्च की थी लेकिन हार गए थे। मुख्यमंत्री रविवार को तिपटूर तालुके के केवी क्रॉस में चुनाव अभियान बैठक को संबोधित कर रहे थे। बेंगलुरु में घरेलू मतदान कराने वाले मतदान कर्मियों की टीम में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौजूदगी के संबंध में एक शिकायत के बाद कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि मतदान कर्मियों के साथ किसी भी पार्टी का कोई अधिकृत पार्टी एजेंट मौजूद नहीं था। शनिवार 13 अप्रैल को भारत के चुनाव आयोग के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा के राजाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 108 में घरेलू मतदान के दौरान मतदान कर्मियों के साथ भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। कांग्रेस के बेंगलुरु सेंट्रल उम्मीदवार मंसूर अली खान ने शनिवार 13 अप्रैल को ईसीआई में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि किरण नायडू नाम का एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर भाजपा कार्यकर्ता होने का दावा करता है, राजाजीनगर में मतदान कर्मियों के साथ गया था। यलंदूर तालुके के एक प्रतिष्ठित आवासीय हाई स्कूल के एक शिक्षक को एसएसएलसी परीक्षा के लिए पढ़ रहे 17 वर्षीय आदिवासी लड़के का यौन उत्पीड़न करने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। घटना 5 अप्रैल की रात 6 तारीख को लड़के की अंग्रेजी की परीक्षा से ठीक पहले हुई। शिक्षक जो समलैंगिक है, उन्होंने कथित तौर पर लड़के को शराब पिलाने और धूम्रपान करने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया। लड़के ने घटना की सूचना अपने माता पिता को दी, जिन्होंने फिर जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके कारण शिक्षक की गिरफ्तारी हुई। इस घटना के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता थी, लेकिन डीसी और एडीसी के ध्यान में दबाव डालने तक इसमें देरी हुई। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर लोकसभा क्षेत्र के लिए आज 3 नामांकन दाखिल।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में कुशीनगर से बीदर शहर तक 133वीं फीट का नीला ध्वज पहुंचा। पीएम मोदी ने कर्नाटक के मंगलूर में विशाल रोड शो किया। डीके शिवकुमार का कहना है कि बीजेपी में वोकलिगाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रहलाद जोशी ने बीजेपी में प्रमुख लिंगायत नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया। दिंगलेश्वर संत केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।